morning, children. Children, this is your English period, so I would request everyone to kindly take out your English grammar books. Today we are going to continue the same chapter, that is chapter 10, adjectives, which we were doing yesterday. So, children, open page 39 in your English grammar book. So, I am going to read out aloud all these lines, and the underlined words are describing words, that is adjectives, and I am going to tell you which kind of adjective it is. Children, in your chapter the kinds of adjectives is not given, so don't worry. I am just telling you for your information. Okay, in class 4, 5, 6, 7 you will, in higher standards you will learn about the different kinds of adjectives. So let's get started. Chapter 10, adjectives. In this unit, children will learn the use of adjectives. Okay, in this chapter you are going to know how to use adjectives with nouns or pronouns. Alright. Students, do you remember the use of describing words? Children, adjectives are also called describing words. Why? Because these adjectives or words, they describe about noun or pronoun. Children, if you remember in class 1 when you studied this topic, you studied as describing words. You studied the chapter as describing words, not adjectives. Alright. So you have already learned describing words in class 1 and class 2. Okay. You are smart, intelligent and active. So children, you is a pronoun and pronoun को describe कर रहे हैं कौन कौन से words? Smart, intelligent and active. So these all three words which are underlined, smart, intelligent and active, are adjectives. Okay. So these adjectives are describing the pronoun you. Alright. In place of you, there could be any name or thing, but whatever you can mention it as noun. Okay. These underlined words are adjectives. So these all underlined words, smart, intelligent and active, these are all describing words, or you can say adjectives. Why? Because these are the words are giving more information about noun or pronoun. That is, here in this case it is giving more information about pronoun, that is you. That means it is saying you. What kind of you are? So you are smart, intelligent and active. Alright. Read some more sentences. Now we are going to read all these sentences in a paragraph, and I am going to tell you which kind of adjective it is, and all the underlined words are all adjectives. Okay. The flamingo. Flamingo is a bird, beta. Here a picture is given of flamingo. Flamingo is a large bird. So beta large जो है वो है adjective of quality. That is, what kind of bird is flamingo? So flamingo is a large bird. यानी flamingo कैसी bird है? Large है. यानी ये जो large adjective है, large क्या है? Adjective है. Large flamingo कैसी है? Large है. यानी इस adjective ने बताया कि flamingo कैसी है. Alright. ये adjective जो कि large है. Large is an adjective and it is telling more information about the bird flamingo. Flamingo is a noun and इस noun को कौन describe कर रहा है? Large. So large is adjective of quality. Alright. कैसी bird है? Large bird है. Alright. So flamingo is a large bird which travels to India in the winter months. यानी flamingo India में कब आती है? In the winter months. Okay. Flamingos are mainly found in Europe, South America and Africa. Beta these three are continents. Europe, South America and Africa are the continents of the world, and flamingos are mainly found in these three continents, that is Europe, South America and Africa. They have pink, white and black feathers. So they कौन है बेटा? They is a pronoun used
for flamingos. All right. So flamingos have pink, white and black feathers. So बेटा pink, white and black जो है वो कलर है. ऑलराइट, जो मैंने आपको कल प्रीवियस सेशन में, कल की क्लास में मैंने आपको एक टेबल दिखाया था ना, उसमें कलर्स दिए थे, तो मैंने बताया था कि वो कलर्स क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो ये पिंक, वाइट एंड ब्लैक आर ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विच आर डिस्क्राइबिंग द फेदर्स ऑफ फ्लेमिंगोज. ऑलराइट, तो फेदर्स इज अ नाउन एंड नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वाइट, ब्लैक एंड पिंक एडजेक्टिव्स. ऑलराइट, they have long legs. So बेटा they है noun, they है pronoun. They is used for flamingos. Legs is a noun. So बेटा noun को कौन describe कर रहा है, long. Long is an adjective, adjective of quality. Okay, shape में था ना बेटा, shape and size में जो आपने कल box देखा था adjective का बड़ा सा, जिसमें shape, size, age, color है ना, ये सब थे ना, उसी में लॉन्ग था बेटा. सो लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड लेग्स को डिस्क्राइब कर रहा है लॉन्ग. सो फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग लेग्स. व्हाट काइंड ऑफ लेग्स डज फ्लेमिंगो हैव्स? फ्लेमिंगो हैज़ लॉन्ग लेग्स. ऑल राइट. सो जहाँ जहाँ आपका क्वेश्चन अगर बनता है कि कैसा था, कैसी थी, तो दीज आर ऑल कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ऑल राइट. एंड थिन लॉन्ग नेक्स. नेक्स मीन्स गर्दन. तो देखिए फ्लेमिंगो की थिन है नेक और लॉन्ग है. सो नेक इज़ अ नाउन, नेक्स इज़ अ नाउन एंड नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, थिन एंड लॉन्ग. व्हाट काइंड ऑफ नेक्स डू फ्लेमिंगोज हैव? फ्लेमिंगोज हैव थिन एंड लॉन्ग नेक्स. तो देखो बेटा आप क्वेश्चन फॉर्म करिए एंड उसका जो आंसर आएगा दैट आंसर इज द एडजेक्टिव. ऑल राइट. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा. व्हाट काइंड, आपने देखा था ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आपने कल पढ़ा था बेटा. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड. सो व्हाट काइंड ऑफ नेक्स डू फ्लेमिंगोज हैव? फ्लेमिंगोज हैव थिन एंड लॉन्ग नेक्स. ऑल राइट. नेक्स इज अ नाउन. तो नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है थिन एंड लॉन्ग. इसी तरह यहाँ पे भी लेग्स को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है लॉन्ग. फेदर्स को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ब्लैक, वाइट एंड पिंक. ऑल राइट. तो फेदर्स नाउन है बेटा, लेग्स नाउन है, और इन नाउन्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव्स. तो बेटा एडजेक्टिव्स वही होते हैं जो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, नाउन को डिस्क्राइब करें. ऑल राइट. दे लिव इन बिग फ्लॉक्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स. बेटा फ्लॉक्स है आपका कलेक्टिव नाउन. ओके, बर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते थे? फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स. ऑल राइट. तो इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन है फ्लॉक्स. बिग, अब व्हाट काइंड ऑफ फ्लॉक्स? तो बिग. ओके, कैसा था? बिग. तो बिग साइज में आता था ना बेटा, कल आपने टेबल पढ़ा था. बिग इज इन साइज. ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स. तो हंड्रेड्स क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ओके, नंबर है ना 100, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो हंड्रेड्स. ऑल दीज अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. ओके, जो भी अंडरलाइन थे यहाँ पे वो सब एडजेक्टिव्स हैं. दे टेल अस मोर अबाउट द फ्लेमिंगोज. सो दे आर टेलिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, दे आर डिस्क्राइबिंग द बर्ड फ्लेमिंगो. वी यूज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेस और थिंग्स. सो बेटा एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ होते हैं? एडजेक्टिव्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें किसी पर्सन को, प्लेस को या फिर किसी चीज़ को, थिंग्स को डिस्क्राइब करना हो. कैसा था, कितना था. ऑल राइट. सो दीज क्वेश्चंस यू कैन फॉर्म while describing a noun or a pronoun. So children, next exercises. Exercise 1, choose the words from the box and place them in the correct leaf. So beta this is leaf, ये सारी leaves हैं बेटा, and यहाँ पे box है grey color का. आपको इन बॉक्स में, इन दिस बॉक्स ऑल द एडजेक्टिव्स आर गिवन. ओके, टेस्टी, हंग्री, सैड, ब्लू, रिच, रेनी, कॉस्टली, ऑनेस्ट, ईजी, स्मार्ट. दीज आर ऑल द एडजेक्टिव्स गिवन इन दिस ग्रे बॉक्स एंड हेयर 2 leaves are given. Okay, so here it is written person, here it is written thing. So children, you have to select each adjective and you have to write it under
पर्सन और थिंग। ऐसे एडजेक्टिव्स, यहाँ पे बेटा बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए हैं, आपको एडजेक्टिव्स देखना है कि आप ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ कर सकते हो, पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कि थिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। ऑल दोज एडजेक्टिव्स विच यू कैन यूज़ फॉर थिंग्स यू हैव टू राइट हियर इन दिस लीफ, and all those adjectives which you can use for person you have to write in this leaf. Okay, so tasty, tasty is an adjective of quality. So tasty क्या होगा बेटा, tasty person में तो नहीं आएगा ना, हम person को तो describe नहीं कर सकते ना tasty में, तो tasty क्या होता है, food. all right, so tasty food is a thing. so tasty कहाँ आएगा, यहाँ पे बेटा. ओके, हम पर्सन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते टेस्टी में, हम थिंग को डिस्क्राइब कर सकते, दैट इज फूड. फूड इज अ थिंग, तो हमने टेस्टी इस लीफ में लिखा. ऑलराइट, हंग्री. अब हंग्री कौन होगा, है ना, हंग्री कौन होगा, पर्सन ही हंग्री होगा, थिंग तो हंग्री नहीं होगा बेटा, है ना. सो हंग्री कहाँ आ जाएगा, पर्सन में. ऑलराइट, सैड. अब सैड तो पर्सन को ही डिस्क्राइब करेंगे ना, दैट राम इज सैड टुडे, है ना, तो राम इज अ पर्सन. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. सो पर्सन ही सैड होगा, थिंग तो सैड होगा नहीं. वी कैन डिस्क्राइब अ पर्सन थ्रू दिस एडजेक्टिव दैट दिस पर्सन इज सैड टुडे. ओके, ब्लू. अब ब्लू तो बेटा कलर है, तो कलर हम किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, थिंग्स को ही डिस्क्राइब करते हैं कलर, है ना. पर्सन को तो नहीं डिस्क्राइब करेंगे दैट दिस पर्सन इज इन ब्लू इन कलर, नॉट ना. तो वी हैव टू राइट ब्लू इन दिस थिंग लीफ. ओके, रिच. अब रिच तो बेटा कोई थिंग तो होगी नहीं, रिच, रिच कौन होता है, पर्सन. पीपल आर रिच, है ना, दिस बॉय इज रिच या ही इज अ रिच मैन. सो मैन इज अ पर्सन, तो रिच पर्सन में आएगा. रेनी. अब रेनी, पर्सन तो रेनी नहीं होगा ना, है ना, तो पर्सन कहाँ आएगा, सॉरी रेनी कहाँ आएगा, थिंग में. कॉस्टली. सिमिलरली कॉस्टली, पर्सन को तो हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे ना कॉस्टली एडजेक्टिव से. सो कॉस्टली क्या होता है, कोई सामान कॉस्टली होता है, थिंग कॉस्टली होता है. सो वी हैव टू राइट इन दिस. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट पर्सन होता है, हम पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑनेस्ट, दैट श्याम इज एन ऑनेस्ट टू हिज वर्क. तो श्याम पर्सन है, हम पर्सन्स को ही, पीपल को ही ऑनेस्ट एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए हम ऑनेस्ट यहाँ लिखेंगे. ओके, थिंग में, थिंग तो ऑनेस्ट हो नहीं सकते. ईजी. ईजी, अ पर्सन तो ईजी नहीं हो सकता ना, सॉल्यूशन या प्रॉब्लम ईजी हो सकता है ना. सो प्रॉब्लम क्या है, थिंग. ऑलराइट, तो ईजी यहाँ पे लिखेंगे. स्मार्ट. स्मार्ट कोई सामान तो स्मार्ट नहीं हो सकता, थिंग को तो नहीं डिस्क्राइब करेंगे एज अ स्मार्ट. So smart, intelligent, active, these all adjectives are used for person. all right, so children, complete this exercise. I hope you understood today what I tried to teach you, and in case you have any problem or queries, you can ask me on the WhatsApp group. And I would request children, please do ask me questions. When you do not ask questions, I feel like you didn't understand anything. Okay, so children, keep revising the chapter adjectives. Today you have studied this page 39. Keep revising it, keep reading all the lines. And yesterday also we did that PPT, and you also keep watching that video so that you can understand it better. So this much is today, and thank you so much children, and please stay safe.